چلو وہ بہتر نہیں ہے. آپ کا یہ ارشاد مبارک ہے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بیماری ہو اور اس کا علاج ہو، اس میں چھوٹی دامن کا ساتھ ہے. اور جب علاج کرنے کا موقع آئے، آدمی کسی وقت بیماری سے دوچار ہو تو اسے چاہیے کہ علاج کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کرے، اور علاج نہ کرنا اور یہ کہنا کہ مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد ہے، اس نے مجھے بیماری دی ہے وہی مجھے شفا بھی دے گا، یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے. لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سے زیادہ شریعت کے جاننے والے اور اللہ تعالیٰ کی پسند ناپسند کو سمجھنے والے تھے، انہوں نے ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ آدمی جب بیماری سے دوچار ہو تو اسے علاج کرنا چاہیے، علاج کرنا سنت ہے. آج کے اس زمانے میں آدمی اگر بیمار ہوا تو علاج و معالجہ کرنا درمیانی طبقے کے لیے تو مشکل ہے ہی، غریب آدمی کے لیے تو بہت مشکل ہو گیا کہ وہ علاج و معالجہ کرائے. دوائیں بھی مہنگی، اور اس کے بعد علاج و معالجے کی جو شکل ہوتی ہے، ابھی شیخ آصف صاحب نے آپ کو بتایا کہ اس سلسلے میں جو لوگ ایجنٹ گیری کرتے ہیں وہ لے جا کر کے پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں ایڈمٹ کر دیتے ہیں، اور اس ہاسپٹل کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا علاج شروع کرنے سے پہلے آپ 1 لاکھ روپیہ ٹیبل پر رکھیے، 50,000 روپیہ ٹیبل پر رکھیے، 10,000 روپیہ جمع کروائیے، تب جا کر کے علاج و معالجہ شروع ہوگا. ظاہر بات ہے جب یہ شکل ہوتی ہے تو آدمی جب حالات سے دوچار ہوتا ہے اور اس کا کوئی عزیز قریب جیسے ماں بیمار ہو گئی، باپ بیمار ہو گیا، بیوی بیمار ہو گئی، بچہ بیمار ہو گیا، تو اسے جو لگاؤ ہوتا ہے اس کے پیش نظر وہ نہ آگے دیکھتا ہے نہ پیچھے دیکھتا ہے. علاج و معالجے کے لیے جتنی جلدی ممکن ہو علاج مہیا ہو جائے اس بات کو پیش نظر رکھتا ہے. اپنی جیب نہیں دیکھتا، اپنی حیثیت نہیں دیکھتا، اور آنے والے اخراجات کا اسے اندازہ نہیں ہوتا. اور پھر شکل یہ بنتی ہے کہ جب علاج و معالجہ آگے بڑھتا ہے اور جب چھٹی لینے کا موقع آتا ہے تو جو دل ہاتھ میں آتا ہے اس دل کو دیکھ کر کے وہ خود بیمار ہو جاتا ہے. اتنا بڑا بل بنتا ہے کہ اس کا پورا کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا. ایسے حالات کے اندر ضروری ہے کہ ہمیں ان جیسے معاملات کے اندر، جیسا کہ ماجی آمدار شیخ آصف صاحب نے کہا کہ جانکار لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے. سرکار کی بہت ساری اسکیمیں ہیں، 900 سے زائد بیماریاں ہیں جن کے علاج کے لیے سرکار نے اسکیم جاری کی. ہمیں ان اسکیموں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ایک تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اور دوسری بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ جاننے والوں سے پوچھتے بھی نہیں، جبکہ ہماری شریعت ہے، قرآن کریم کا فرمان ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر بھلائی کی بات تمہیں معلوم نہ ہو، تم ناواقف ہو تو جاننے والوں سے پوچھو. آپ جاننے والوں سے پوچھو گے، تجربے کار لوگوں سے پوچھو گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس موقع پر کیا کرنا چاہیے. ہمارا شہر ایک ایسا شہر ہے کہ اس شہر کا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ سول ہاسپٹل میں اچھا علاج نہیں ہوتا، سول ہاسپٹل میں اچھی دوائیں نہیں ملتی. ہوتا یہ ہے کہ سول ہاسپٹل میں جو دوائیں ملتی ہیں وہ سرکار کی طرف سے مہیا کرائی جاتی ہیں اور 1 نمبر کی دوائیں ہوتی ہیں. لیکن ہمارا مزاج بن گیا ہے، اپر کلاس جانے دو، مڈل کلاس جانے دو، لوور کلاس کے لوگ، غریب طبقے کے لوگ بھی سرکاری ہاسپٹلوں میں جانا پسند نہیں کرتے، پرائیویٹ ہاسپٹلوں کا رخ کرتے.
छोटी मोटी जो रोजाना की बीमारियां होती हैं, सर्दी है, बुखार है, इसके लिए ठीक है आप किसी क्लिनिक पर चले जाएं, इलाज करवा लें, लेकिन बड़ी किसी बीमारी से आदमी दो चार हो तो उसे थोड़ा सा सोच समझ करके कदम आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे शहर में इस बात की जरूरत है कि ऐसा कोई तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए कि गरीब लोगों को इलाज और मुआवजे में सहूलत हो, या तो हम उसका इंतजाम खुद करें, या फिर जो लोग मुब्तला भी ही हैं, बीमारी का शिकार है, वो जानकार लोगों से मुलाकात करके सरकार की स्कीमों से फायदा उठाने की कोशिश करें। कल जब ये हजरात मुमताज है, दानिश है और उनके चंद दोस्त अहबाब दावतनामा लेकर के आए थे और उन्होंने अपने कारोबार के मुताबिक बताया, तो इस बात का भी उन्होंने इजहार किया कि हम सस्ती दवाएं दें, यानी मेडिकल पर जो दवाएं जिस रेट में मिलती हैं हम उसमें रियायत करके सस्ती दवाएं लोगों को मुहैया करेंगे। जाहिर बात है कि जब जहाँ सस्ता मिलता है लोग वहाँ दूर दराज से जा करके दवाएं लेते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेते हैं। अगर ये बात पेश नज़र है और ये आप चाहते हैं कि बीमारी में मुब्तला लोग जब रुपये पैसे को लेकर परेशान रहते हैं तो सस्ती दवाओं का इंतजाम अगर आप करोगे, अच्छी दवाओं का आप इंतजाम करोगे, तो चाहे मैंने इनसे पूछा था कि आपके मेडिकल के करीब कोई हॉस्पिटल है, वरना आपने देखा होगा कि जब हॉस्पिटल बनता है तो हॉस्पिटल वाला खुद ही एक मेडिकल भी बनाता है और उस हॉस्पिटल के आसपास जो मेडिकलें होती हैं लोग हॉस्पिटल से निकलते हैं, भाग करके मेडिकल पे जाते हैं, जल्दी से दवा लेते हैं, फौरन वापस आते हैं, इसलिए कि उनको कहा यही जाता है बस 1 मिनट में दवा चाहिए। तो इनसे मैंने पूछा कि आपकी एजेंसी के करीब, आपके मेडिकल स्टोर के करीब कहीं हॉस्पिटल है? तो बोले नहीं है हॉस्पिटल, लेकिन हम लोग सस्ती दवा देंगे। मैंने कहा फिर ठीक है, आप सस्ती दवा देंगे तो बहुत अच्छी बात है। आज इस मौके पर दवा आज के ज़माने में हर एक की ज़रूरत बन गई है। पहले ऐसा होता था लोग कम बीमार होते, वजह उसकी ये थी कि लोग कम खाते थे। किताबों में आपने पढ़ा होगा कि मुल्क के फारिस से, यूनान से वहाँ के हुक्मरान और बादशाह ने एक हकीम को मदीने मुनव्वरा भेजा था और वो मदीने मुनव्वरा में आकर के रहा। काफी टाइम गुजारने के बाद भी बीमारों का इलाज और मुआवजा करने के लिए उसने अपने आप को मदीने मुनव्वरा में मुक़य्यद कर लिया था, लेकिन बीमार आते नहीं थे। उसने जा करके जिम्मेदारों से पूछा कि आपकी बस्ती ऐसी कैसी बस्ती है कि यहाँ कोई बीमार नहीं होता? तो बताया कि हमारे पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि अपने पेट के 3 हिस्से करना चाहिए, एक हिस्सा खाने के लिए, एक पानी के लिए और एक खाली छोड़ देना चाहिए। कम खाने वाला बीमार नहीं होता, कम खाने वाला बीमार नहीं होता। हज्जाज इब्न यूसुफ एक बहुत बड़ी तारीखी शख्सियत गुजरी है जहाँ उसने बहुत ज्यादा जुल्म सितम किया था, वहीं उसने कुरान करीम की आयत पर एराब भी लगाया। अगर वो कुरान करीम की आयत पर ज़ेर ज़बर नहीं लगाया होता तो आज हम लोगों के लिए कुरान करीम पढ़ना मुश्किल हो जाता, बल्कि बेपढ़े लिखे अरबी न जानने वाले लोगों के लिए नामुमकिन हो जाता। लेकिन उसने कुरान करीम पर ज़ेर ज़बर लगाया तो क़यामत तक पढ़ने वाले लोगों का जो सवाब मिलेगा अल्लाह पाक उसको भी अता करेगा। तो इस उम्मत का सबसे बड़ा जालिम भी था और इस उम्मत का सबसे बड़ा नेकी का काम भी उसने किया। उसने अपने उस वक्त के बगदाद के मशहूर हकीम से पूछा था कि मुझे तिब्बी एतबार से कोई मशवरा दे। तो उन्होंने मशवरा दिया था कि दोपहर का खाना खाने के बाद 15-20 मिनट आधा घंटा कैलूला करना चाहिए। रात का खाना खाने के बाद चहलकदमी करना चाहिए, बगैर चहलकदमी किए बिस्तर पर ना जाए और बिस्तर पर जाने से पहले पेशाब पखाने की हाजत पूरी करके बिस्तर पर जाना चाहिए। और एक खाना खाने के बाद
जब तक भूख न लगे दूसरा खाना नहीं खाना चाहिए, चाहे 3 दिन इंतजार करना पड़े। हमारा तो मामला इसकी बिल्कुल बरक्स है, भूख लगे ना लगे वक्त तो मुकर्रर है, और अहबाब की जितनी हमारी जो है टीम होती है वो तय है कि आज दोनों तरफ से पार्टी, कल दोनों तरफ से पार्टी, तो खाना ही है, भूख लगे ना लगे। जब तक भूख नहीं लगे उस वक्त तक खाना नहीं खाना चाहिए, और एक मर्तबा खाना खा लिया तो उसके बाद पानी नहीं पीना चाहिए, घंटा आधा घंटा इंतजार के बाद पानी पीना चाहिए। और फिर उस हकीम ने जो बात कही वो ये कि खाना खाने के बाद फौरन पानी पीना, उससे अच्छा ये है कि आप जहर पी लो, इतना नुकसानदेह। लेकिन शायद हम में से चंद एक लोग होंगे जो खाना खाने के बाद पानी न पीते हो, वरना हर एक की आदत है, जैसे ही खाना खत्म हुआ गिलास पानी का भरा हुआ रखा होता है, एक गिलास पीने के बाद लोग दूसरा गिलास भी पी जाते हैं। खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, घंटा आधा घंटा इंतजार के बाद पानी पीना चाहिए। अगर इन उसूलों को आदमी अपना ले, पेट भर खाना ना खाए और तिब्बी उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारे, तो बीमारियों से एक हद तक महफूज रहे। और हम लोग इन सारी चीजों का ख्याल नहीं रखते, यही वजह है कि हम लोग बीमारियों का शिकार होते हैं, और उसकी वजह से फिर हर एक के लिए दवा लाजमी और जरूरी होगी। डॉक्टर लोग कहते हैं जब जिंदगी भर खाना पड़ेगा, शुगर का मरीज हो, प्रेशर का मरीज हो, कैंसर का मरीज हो, और भी बहुत सारे अमराज हैं, एक मरतबा दवा चालू हुई तो फिर वो दवा चलती रहती है जिंदगी के साथ। ऐसे हालात के अंदर गरीब आदमी अगर इलाज व मुआवजे के लिए बीमारी में मुब्तला हो गया तो बहुत परेशान होता है। आज इस मौके पर न्यू दवा बाजार का इफ्तिताह हो रहा है। मैं मुमताज है, दानिश है, उनके अहले खाना है, दोस्त अहबाब और मुतालिकीन जो इस काम में उनके साथ शरीक रहे, सभी लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये शहर अगर तिब्बी उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारे तो बहुत हद तक बीमारियों से महफूज रह सकता है। अल्लाह ताला इनके रिस्क में, इनकी उम्र में और इनकी सलाहियतों में बरकत अता फरमाए, और इस शहर को शहर वालों की तरफ से देश फायदा पहुँचे। तो आप दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।